Okay, so today we will discuss some of the basic concepts related to genetic disorders. Okay, not exactly we will cover all the genetic problems, but in the beginning we will see some of the basic concepts of genetic disorders and how to understand that. Okay, uh, genetic disorder means one which is inherited from one generation to another generation. Therefore, it is called as genetic. Okay, that means some genetic information is transformed from one generation to another generation. Okay, some of the qualities which is present in my father's chromosomes was also transformed to me. Okay, generation to generation, some of the information, some of the factors are transmitted. So study of this particular inheritance, so this transformation is called as inheritance. Father's qualities are inherited to child, so that is inheritance. So study of this inheritance is called as genetics. Now we know that how these characters are transformed, or rather transmitted, because through the chromosomes. Okay, because sperm and ovum, this is given from the father and as well as mother, and they contain chromosomes. Each sperm contains chromosome, each ovum also contains chromosomes, and we also know that that chromosome also contains so many genes. Okay, so there are totally 23 pairs of chromosomes. In each chromosome there are more than 500 genes. So when there is sperm and zygote coming to, sperm and ovum coming together, formation of zygote, so there will be formation of the diploid cell. From the haploid cell there is a formation of the diploid cell, and there is a set of chromosomes, one from the 23 from the father side and 23 from the mother side, and a diploid chromosome is formed, and all the characters which are present in that sperm, all the characters which is present in the ovum, so they now are inside the zygote, and it is transferred to the next life. Okay, this is what is happening now. Totally these hereditary disorders or genetic disorders basically divided into 4 types. Go to the basics. Okay, we are not going in detail. They are basically 4 types. One is Mendelian type of inheritance, or Mendelian type of inherited disorders or hereditary disorders. Another one is non-Mendelian type of hereditary disorders. Non-Mendelian type of hereditary disorders. Another is chromosomal disorders. Okay, another is chromosomal disorders. So when you talk about genetic disorders, these are the 3 basic things. ओके, इनहेरिटेंस, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में कोई भी गुणधर्म जो है जब वो ट्रांसफर होता है, सो दिस कैन बी पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ दीज 3 टाइप्स. ओके, one is it is transformed through the Mendelian type of inheritance. Another is non-Mendelian type of inheritance. Okay, another one is chromosomal inheritance. ठीक है, वहाँ पे chromosomes आ रहा है, उसके थ्रू जा रहा है. जब डिसऑर्डर्स को हम देखेंगे तो भी डिसऑर्डर इसी टाइप का है. Mendelian type of disorders, non-Mendelian type of disorders, and chromosomal disorders. Now, first we will see what is the chromosomal disorders. Okay, then we will go to the Mendelian and non-Mendelian. See, 3 types basically, 3 types: Mendelian, non-Mendelian, and chromosomal disorders. Okay, first you clarify this. What do you mean by chromosomal disorders? Now, chromosomal disorders are different from Mendelian and non-Mendelian disorders. ठीक है, क्रोमोसोम डिसऑर्डर में क्या होता है कि पूरा क्रोमोसोम में ही प्रॉब्लम होता है. अब क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट डीएनएस. डीएनए के अंदर कोई एक जगह में जीन है ना. एक क्रोमोसोम में बहुत सारे डीएनए से बना हुआ है, और कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर को ही हम जो है जीन बोलते हैं. ओके, नाउ सपोज ए क्रोमोसोम, इट कंटेन्स 3 पार्ट्स. वन इज पी, अनदर वन इज क्यू, एंड बीच में एक सेंट्रोमियर है ना. क्यू थोड़ा शॉर्ट होता है, पी थोड़ा बड़ा होता है, बीच में एक सेंट्रोमियर रहता है. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, कहीं अगर
इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गया, तब हम उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे P रहना है वहाँ पे Q आ गया, और जहाँ पे Q रहना है वहाँ पे P आ गया, ठीक है। या पूरा एक क्रोमोसोम है, बीच में सेंट्रोमियर है, Q का एक छोटा सा पार्ट सेपरेट हो गया, कट हो गया, वो जाके P के साथ मिल गया। अब Q और शॉर्ट हो गया और P और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया। ओके, दिस इज कॉल्ड एज डिलीशन बोलते हैं, डिलीट हो गया। या क्रोमोसोम में ये हो सकता है कि छोटा सा एक पार्ट है, बहुत फ्रेजाइल है, वो टूट रहा है। अब क्या होगा कि जो पोर्शन डिलीट होकर दूसरा जगह में जाके अटैच हो ना, तो जब डिलीट वाला पोर्शन में क्या हुआ, बहुत सारे जीन्स भी था, बहुत सारे जीन्स था ना, वो जो डिलीट हुआ वो पोर्शन क्रोमोसोम का, वो जीन्स का लोकेशन ही चेंज हो गया। अभी यहाँ पे रहना तो वो जाके ऊपर बैठ गया अभी। सो डेफिनेटली दिस लीड्स टू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। फ्रेजाइल है, बहुत सारे जीन्स है, वो जहाँ पे एक जगह फ्रेजाइल है, बहुत पतला है या फ्रेजाइल है, तो वो टूट रहा है, तो वहाँ पे भी तो जीन्स है, वो जीन्स तो लॉस ही हो गया, वो जीन्स तो लॉस ही हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। नाउ इफ यू सी देयर इज नो प्रॉब्लम इन द जीन्स, हियर देयर इज नो प्रॉब्लम इन द जीन्स, जीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रोमोसोम ये अटैच होकर दूसरी जगह में जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्या है कि P और Q है, एक जगह से दूसरा कोई क्रोमोसोम है, उसका Q आके इसी के साथ जुड़ गया, ये सेंट्रोमियर है, 2 Q है और 1 P है, तो अब कुल मिला के 3 कितना हो गया, 3 हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइजोमी, दिस इज हाउ द ट्राइजोमीज आर फॉर्म्ड। एक दूसरा क्रोमोसोम का जो Q है वहाँ पे रहना चाहिए, तो उसको फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर 15, उसका जो Q है वो क्रोमोसोम नंबर 15 में रहना चाहिए था, वो जाके उसका Q जो है क्रोमोसोम नंबर 13 में जुड़ रहा है। दिस लीड्स टू 3 पार्ट, 3 बॉडी हो गया, ट्राइजोमी हो गया, जोमी मीन्स बॉडी, 3 बॉडी हो गया उसका, दिस लीड्स टू ट्राइजोमी 13। और जिसने लॉस किया तो वहाँ पे एक ही बचा है, इट लीड्स टू मोनोसोमी, वो तो एक ही बन गया। So this, therefore, all the trisomies like Down syndrome, Edwards syndrome, Petato syndrome, so they are not basically the gene disorders. They are basically the chromosomal disorders. Chromosomal disorders. Okay. So now this we have to understand. So chromosomal disorders में chromosomal उल्टा पुल्टा हो जाता है, ठीक है। कभी कभी वो कट हो गया और कट होके वापस वहीं पे वो ज्वाइन हो जाता है, बट उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो उल्टा होने के बाद भी प्रॉब्लम हो गया ना, तो नॉर्मल फंक्शन तो हो ही नहीं पाएगा, उल्टा हो गया, जीन्स का लोकेशन पूरा इधर उधर हो गया। जीन्स को जो है अपना काम करने के लिए पर्टिकुलर सेटअप चाहिए, वो सेटअप तो है ही नहीं है। ओके, सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, एंड यू शुड नॉट कंफ्यूज द अदर जीन डिसऑर्डर्स विद द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम आता है ना, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इट इज बिकॉज ऑफ द वन पोर्शन ऑफ वन क्रोमोसोम इज फ्रेजाइल, और वहाँ से जो है क्रोमोसोम टूट रहा है, तो इसकी वजह से वो सिंड्रोम आता है। तो वो जो टूट रहा है, वो जो जीन्स है, वहाँ पे जो जीन्स था, ठीक है ठीक है, वो एक मीटिंग अटेंड करते हुए हमें और क्वेश्चन डेवलप कर रहे थे, तो मैं एक मुझे बातें की उम्र से। तो जहाँ पे फ्रेजाइल टूटा है ना, ये जहाँ पे टूट गया, तो वो टूटा वहाँ पे बहुत सारे जीन्स था। हो सकता है कि उसमें कुछ जीन ऐसे जीन था कि वो आपका ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने वाला जीन्स था। अगर वो पोर्शन चला गया तो पेशेंट को क्या होगा, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगा। हो सकता है वहाँ पे ऐसे जीन्स था जो बॉडी का बोन्स को बनाता होगा, बोन्स का जो ग्रोथ के लिए जो कारण जो प्रोटीन बनाता, वो जीन्स चला गया, सो उस पेशेंट को क्या हुआ, तो बोन्स का कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। सो दिस इज हाउ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाट हैपनिंग इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या है कि मसल में प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम में हार्ट में प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम में बाकी माइलस्टोन में प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम में मेंटल रिटार्डेशन है, बहुत सारे कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। वो सब इसलिए आता है कि वो पर्टिकुलर इतना इंपॉर्टेंस जीन है ना, वो लॉस हो जाता है।
कहीं और जाके वो कहीं और जाके सेट हो जाता है. So this is called as chromosomal disorders. Chromosomal disorders should not be confused with the genetic disorders of a Mendelian type. Okay. So this there are different fragile हो सकता है, disjunction हो सकता है, mosaicism हो सकता है, mosaicism हो सकता है, and deletion हो सकता है. Now what is mean by mosaicism? This is quite interesting. Okay, usually what actually happens is the sperm contains ನೀನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ 4:15. ನೋಡು, ನಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ATM ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದೆದ್ದು ಸುಮಾರು ಅದೆದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಹಣ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮುಟ್ಟದ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆಯಿತು. Okay, so now see there is formation of the sperm and ovum. ठीक है, ये क्या होता है यूजुअली जब स्पर्म जब बनता है, ठीक है, फॉर द रिप्रोडक्शन स्पर्म जब बनता है, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, इजंट इट? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि 4 स्पर्म बनता है, पता है आपको? मतलब बेसिकली जो स्पर्म जब बेसिकली जो गोनाडल सेल है, it contains 46 chromosomes, and this 46 chromosome is now divided into half 4 बन जाता है ना? कि देखो, एक स्पर्म का एक गोनाडल सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम है, उस सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है. वो जो 46 में एक सेट कहाँ से आया? वो जो सन है उसका फादर से आया. और दूसरा एक सेट कहाँ से आया? वो जो सन था उसका मदर से आया. उसका फादर और मदर से आया हुआ एक एक जो सेट था वो उस बच्चे का, मतलब जो अभी रिप्रोडक्शन करने वाला है उस बच्चे का गोनाडल में, ठीक है. सो दैट कंटेन 46 क्रोमोसोम्स. नाउ दैट मैन इज गोइंग फॉर रिप्रोडक्शन. वो जो भी है आदमी, वो अभी रिप्रोडक्शन के लिए जाने वाला है. जब रिप्रोडक्शन के लिए जाना होता है कि वो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआस, हम बोलते हैं, जो 4 सेल बनता है जो हैप्लॉइड है, 23 का बनता है. बट ये बनने से पहले वहाँ पे एक प्रक्रिया होता है. व्हाट इज दैट? जैसा अभी उसका जो स्पर्म है उसके अंदर क्या है? फादर का और मदर का एक एक पेयर क्रोमोसोम है ना, एक एक पेयर है. अगर 14 बता रहा हूँ ना, 14 का फादर का साइड से आया हुआ एक है सेट है, मदर के आया हुआ एक सेट है, दोनों मिलकर एक पेयर बन गया. ठीक है. नाउ दे अंडरगो सेल डिवीजन. वो जो सेल है इट अंडरगो सेल डिवीजन. जब सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है कि जो क्रोमोसोम वहाँ पे पड़ा हुआ है तो वो सब इंटरमिक्स होता है ना, रैंडमली पूरा क्रोमोसोम एक बार बिखर जाता है. ठीक है, पूरा सेपरेट हो जाता है, सेल डिवीजन में होता है, और उसके बाद वो रीसेट होता है. ठीक है, उसके बाद वो रीसेट हो जाता है. समझ में आ रहा है? हर सेल डिवीजन में यही प्रक्रिया है. सेम थिंग है, पर वंस दे आर कंप्लीटली मतलब सेग्रीगेट एंड देन अगेन कंबाइन टुगेदर. ठीक है. तो जब ये फादर का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों का क्रोमोसोम वहाँ पे पड़ा हुआ है तो वो अभी सेग्रीगेट हो गया. ठीक है. अगर ये सन है तो सन का, फादर का और मदर का दोनों का क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए, उसके बाद कंबाइन हो गए. जब वो कंबाइन हो गए ना, फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोम नंबर 14, वो कंबाइन हो गए, फादर का और मदर का एक बार अलग होके वापस कंबाइन हो गए. कंबाइन होते वक्त वो दोनों आपस में बात करेंगे. ये दोनों क्रोमोसोम किसका? सन का नहीं है, सन का फादर का, कि हमारा पोता कैसे होना चाहिए. अभी हमारा ये सन का बॉडी में है ना अभी, तो वो दोनों वहाँ पे बात करेंगे हमारा पोते को कैसे बनाना चाहिए. कौन बात कर रही है? दोनों दादा और दादी. ठीक है, हमारा पोता कैसे होना चाहिए. तो वहाँ पे एक डिस्कशन होता है, हमारा पोते में जो है ये क्वालिटी होना चाहिए, ये क्वालिटी होना चाहिए, ये क्वालिटी होना चाहिए. तो वो दोनों वहाँ पे क्या करते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं.
मतलब जिसका पास भी, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली, ठीक है, तो वहाँ पे पूरा मिक्सअप हो जाता है, इसका जीन यहाँ पे आ जाता है, मतलब इसका जो सेट है वो डीएनए इधर आ जाता है, पूरा मिक्सअप हो जाता है, उसके बाद जो बेस्ट क्वालिटी को वो प्रोड्यूस कर, वो दोनों मिलके जो क्रोमोसोम नंबर 14 अभी बनाएंगे, वो ऐसा बनाएंगे कि उसमें वीकनेस कम हो, अच्छा क्वालिटीज ज़्यादा हो सकता है तो दादी में कुछ वीकनेस है तो दादी बोलते हैं कि ये मेरा जो है वीक पार्ट है, इसको हटा दो, आपका ये वाला पार्ट, दादा का ये वाला पार्ट अच्छा है, इसको रखो। सो इस तरीके से वो एक कॉम्बिनेशन बना के क्रोमोसोम नंबर 14 को एक नया बना देते हैं, दोनों आपस में बात करके। इसी द सेम थिंग हैपन्स इन ईच एंड एवरी क्रोमोसोम। Okay, then that particular chromosome undergo, that particular cell, that is gonadal cell, that undergo the cell division and 4 spermatozoas are formed. समझ में आ रहा है? 4 spermatozoas are formed. उसमें एक X होगा, अगर ऑटोजोम तो सही रहेगा, जो सेक्स क्रोमोसोम में क्या होगा, ऑटोजोम्स प्लस एक X, ऑटोजोम्स एक और X, ऑटोजोम Y एंड ऑटोजोम Y, ठीक है। तो इस तरीके से 4 स्पर्मेटेट्स बनता है ना एक से। सिमिलर सेम थिंग ऑल्सो अकर इन द ओवम। ओवम में भी जब जो है, जब ओवम रेडी होके आ रहा है रिलीज होने के लिए, तो वहां पे भी है ना, वो जो मदर है, अब लेडी है जो कंसीव करने वाली है, उसका फादर का एक पैर क्रोमोसोम, उसका मदर का एक पैर क्रोमोसोम वहां पे पड़ा हुआ है। जब वो रिलीज हो रहा है तो वो भी वहां पे इसी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी माइटोटिक डिविजन, सॉरी मियोटिक डिविजन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मियोटिक डिविजन। हेलो, ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ತು ಬೆತ್ತಮ್ಮ ಫರ ಅರ್ಜೆಂಟಾ, ಪಣ್ಲೆ 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 ಹಾಂ 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 ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ 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 ಸರಿ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡು. Okay, so this is how the from the ovum and sperm इतना सारे प्रिपरेशन वहाँ पे चलता है। उसके बाद वहाँ से ओवम रिलीज़ हो गया और उसके बाद यहाँ से स्पर्म रिलीज़ हो गया और दोनों जो है मिल गए, मिलने के बाद जाइगोट बन गया, ठीक है। अब जाइगोट में वापस फादर का और मदर, मतलब लड़का और लड़की का दोनों का मिल गया वहाँ पे, तो कितना डाइवर्सिटी आ गया। तो वो जो बच्चे में जो है क्रोमोसोम है जाइगोट में, उसमें कहाँ कहाँ का कैरेक्टर्स आ गया, ठीक है। फादर का ग्रैंडफादर का सभी कैरेक्टर्स आ गए उसमें, ग्रैंड मदर का सभी आ गया, और लड़की का साइड से जो ग्रैंडफादर है उसका भी सभी कैरेक्टर आ गया, लड़के का साइड का जो ग्रैंडफादर है वो लड़के सभी आ गया। व्हाट द पॉइंट? एंड देन इफ यू टेक दैट ग्रैंड मदर्स, उसका जो क्रोमोसोम कैसे बना, उसका ग्रैंड मदर उसका ग्रैंडफादर से बना, वो भी राइट्स लड़के के साइड और लड़की के साइड दोनों साइड से, ठीक है। सो दैट इज हाउ दिस मच ऑफ डाइवर्सिटी इज देयर इन द क्वालिटीज, ठीक है। हम लोगों में अब इतना क्वालिटी है तो इसमें कम से कम कितना, कम से कम 40-50 जनरेशन उससे भी पहले वाला
जो भी है ना वो सभी जो है क्वालिटीज है उसमें इंटीग्रेटेड है ना, सिर्फ 50 नहीं है, उससे भी पहले मतलब इतना डाइवर्सिटी हो गया, इतना मिक्सअप हो गया, जैसे जैसे जनरेशन जाएगा जनरेशन जब उतना ज़्यादा आता रहेगा, एडवांसमेंट होता रहेगा, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली हैपन्स, ठीक है. नो व्हाट आई मीन बाय मोजाइज्म. मोजाइज्म एक सिंपल चीज़ है. क्या है कि ये जो मैंने बताया इस तरीके से ये चेंजेस होता है और उसके बाद इंटरमिक्सिंग होता है ना, ठीक है. मैंने बताया एक बार पूरा क्रोमोसोम बिखर जाएगा, उसके बाद क्रोमोसोम वापस सेट होगा. ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट चलता है, ठीक है. स्पर्मेटोजेनेसिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, ठीक है. तो ये बहुत फास्ट चलता है. जब भी कोई भी चीज़ आप फास्ट करेंगे तो वहाँ पे गलती होने का चांस रहता है, ठीक है. तो पूरा सेपरेट हो गया, उसके बाद वापस सेट होना है, वापस सेट भी करेक्ट होना है, 14 में 14 ही आना है, 15 में 15 ही आना है, ठीक है. तो ये कभी कभी क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है. गड़बड़ होने के बाद जैसा मैंने बताया या तो वो डिलीट हो सकता है, या तो ट्राइजोमिस हो सकता है, या तो मोनोजोमिस हो सकता है, और या तो डिसजंक्शन हो सकता है या रिवर्स डिसजंक्शन हो सकता है, ठीक है. तो इस टाइप का सभी चीज़ें पॉसिबल है. कब होगा ये? ओवम रिलीज होने से जस्ट पहले होता है सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, पता होगा, आपने पढ़ा होगा. प्राइमरी मियोटिक डिवीजन ओवम रिलीज होने से थोड़ा पहले होता है, ठीक है. और सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन ओवम में जो है यूजुअली जाइगोट बनने के जस्ट या कभी कभी वो बनने के बाद होता है. हाँ, फर्टिलाइजेशन में वहाँ पे होता है, ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनने के बाद होता है, उसका कंप्लीट होता है एक्चुअली सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, क्या है कि हम जो भी बोलते हैं ऋतुमती परिचर्या, रजस्वला परिचर्या, इसका जो इम्पोर्टेंस ये है कि यू शुड नॉट डू एनी सच थिंग सो दैट ये वाला जो चीज़ है वो इफेक्ट हो जाए. क्योंकि यूजुअली द प्रॉब्लम इज स्ट्रेस की वजह से ये सब गड़बड़ हो जाता है. स्ट्रेस लीड्स टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स, ओके. तो इस तरीके से अगर बन गया तो दिस कम्स अंडर द क्रोमोसोमल ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम इन द क्रोमोसोमल ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इज मोजाइज्म. व्हाट इज मोजाइज्म? मोजाइज्म इज नथिंग बट, तो ये हो गया. अब देखेंगे मोजाइज्म क्या है. सपोज जाइगोट बन गया, ठीक है, जाइगोट बन गया. जाइगोट बनने के बाद क्या होता है कि सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है, हमने अभी बताया था. जब जाइगोट बनने के बाद सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगा, अगर वहां पे कोई गलती हो गया, और तो पॉइंट जाइगोट ठीक से बना, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्रोमोसोम्स करेक्ट नंबर में जुड़ गए, सब सही हो गया, ठीक है. बट जाइगोट बनने के बाद जब सेकेंडरी मियोसिस में चल रहा था तो वहां पे कुछ गड़बड़ हो गया, फास्ट चल रहा है ना प्रोसेस, तो वहां पे कुछ क्रोमोसोम इधर उधर हो गया, ठीक है. 14 में क्यू आया नहीं है, 14 तो सिर्फ पी है, और वहाँ पे दूसरे में कुछ और चला गया या डिलीट हो गया, जो भी गलती हो गया. तो अब क्या होगा? अब ये तो आगे चलता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, ओके, एंड जाइगोट का नेक्स्ट डिवीजन हो गया. मेक इट वेरी क्लियर, दो जाइगोट का दो डॉटर सेल बन गया, ठीक है. वो जो दो डॉटर सेल है उसका भी दो डिवीजन हो गया, ठीक है, 4 बन गया, इधर से भी 4 बन गया, ये वाला भी 2 बन गया था ना, दोनों. एक तो ये सीरीज है, जाइगोट इज देयर, इट डिवाइड इनटू 2, नेम इट एज ए सीरीज एंड बी सीरीज. अब ये सीरीज वापस डिवाइड होगा, उसका बनेगा A1 A2, बी सीरीज भी वापस डिवाइड होगा B1 B2, अलग अलग सेल्स ना, स्टेम सेल्स जैसा है. अब 3 बार सेल डिवाइड हो गया, चौथा बार जब सेल डिवाइड हो रहा है तो वहां पे कोई गलती हो गया, ठीक है. क्रोमोसोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गलती हो गया, तो वो गलती हो गया तो वो चालू रहेगा वो गलती. 14 क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, कौन सा? ये सीरीज में, ये सीरीज में प्रॉब्लम है. तो ये सीरीज को जितना भी डॉटर सेल्स बनेगा अभी वो सब पैथोलॉजिक ही बनेगा, गलती बनेगा. बट बी सेल जो है पहला सेल हुआ था वो तो नॉर्मल है, उससे जितना भी बनेगा वो सब नॉर्मल बनेगा. व्हाट द पॉइंट? एक ही जाइगोट से तो पूरा सेल बनता है, पूरा बॉडी बनता है. तो मैं बता रहा हूँ, जाइगोट एक डिवीजन जब हुआ तो सही हुआ, उसका ए वाला पोर्शन जो हुआ उसमें गलती हो गया, बी वाला जो पोर्शन सेल था उसमें गलती नहीं हुआ. अब बी सेल जो है वापस डिवाइड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, मिलियंस ऑफ सेल्स बनेगा, इसमें कोई गलती नहीं होगा. बट ये सेल में जो है गलती हो चुका है, उसको जितना भी मिलियंस ऑफ सेल बनता है, डॉटर सेल बनता है, उसमें सब गलती रहेगा.
दैट मीन्स ए सिंगल पर्सन इज हैविंग 2 टाइप ऑफ सेल लाइन्स, एक में गलती है और एक में गलती नहीं है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जिसमें गलती हुआ वो सेल्स जाके आगे क्या बना रहा है। सपोज वो जो सेल्स है जिसमें गलती हो गया वो जाके आगे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बना रहा है, वो जाके आपके आगे जाके आपका नर्वस सिस्टम को बना रहा है या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बना रहा है, तो क्या होगा, वाइटल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मान लो अगर वो सेल्स है जिसमें गलती नहीं हुआ, अच्छे से बन रहा है, वो नर्व सिस्टम को बना रहा है, वो कार्डियक सिस्टम को बना रहा है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बना रहा है, वो एंजाइम्स को बना रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लो बी सेल्स है, सॉरी ये वाला सीरीज वाला सेल्स है, वो जो है स्किन्स को बना रहा है, इट इज ओनली मेकिंग द स्किन, प्रॉब्लम कहाँ रहेगा, स्किन में रहेगा। स्किन इतना एक वाइटल ऑर्गन नहीं है जितना आपका हार्ट है, जितना आपका नर्व सेल है। तो पेशेंट को क्या अगर स्किन का कोई प्रॉब्लम हो, बट ही इज नॉट हैविंग मेंटल रिटार्डेशन, इज नॉट हैविंग कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, सो ही कैन थ्राइव वेल। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज मोजाइज्म। एक ही आदमी है, उसमें 2 टाइप का सेल लाइन मिलेगा आपको। ओनली इनकी जब डिफेक्ट हो गया तो नहीं, इन केस ऑफ मोजाइज्म पर्सन विल हैव 2 सेल लाइन्स। जैसा हम लोग नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोगों में क्या है कि हमारा एक जाइगोट था, वो डिवाइड हो गया, उसमें कोई गलती नहीं हुआ, वही चलता रहा। बट मोजाइज्म में क्या हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट का 1 या 2 डिवीजन बन गया ठीक से, और तीसरा बार जब वो डिवाइड हो रहा तो वहां पे गलती हो गया, वो गलती आगे तक कैरी हो गया। और जो सेल लाइन है जिसमें गलती नहीं हुआ वो तो सही रहेगा, और जिसमें गलती हो गया तो वो पूरा लाइफ। देयरफॉर यू हैव टू, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, मोजाइक डाउन सिंड्रोम इज देयर, ठीक है, एक मोजाइक डाउन सिंड्रोम बोल के एक है, तो वो क्या है, डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी है, पता है आपको। 3 या 4 बार जाइगोट डिवाइड होने के बाद, उसके बाद जो 5th या 6th वाला जो टाइम जब जाइगोट डिवाइड होता है तो वहाँ पे कोई एक गलती हो जाता है, वहाँ पे PQ और एक और Q आके ऐड हो जाता है। उसके बाद जो है, जो उससे जो डॉटर सेल्स जो भी बनेगा वो सब क्या होगा, पूरा जो है गलती वाला ही होगा। उससे नीचे जो बनेगा वो सब सही है, दूसरा जितना भी सेल्स है वो सब सही है। ओके, सो सम टाइम, सो अगर लकीली जो गलती जिसमें हुआ सेल लाइन में, वो सेल लाइन बॉडी का एक बहुत ही क्या बोलते हैं आप, इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन को नहीं बना रहा है, ठीक है, हो सकता है कि बोन्स को बना रहा है, अब बोन्स आर कंपैरेटिवली लेस हार्डर देन द नॉर्मल, और स्किन को बना रहा है, ठीक है, टीथ को बना रहा है। सो हो सकता है कि उस पेशेंट का टीथ में प्रॉब्लम है, ठीक है, या बोन्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, स्किन में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट उसका बाकी जितना भी वाइटल ऑर्गन है वो सब सही है। दिस कैन हैपन इन केस ऑफ अ मोजाइक डाउन सिंड्रोम। इसलिए डाउन सिंड्रोम इज नोन फॉर मेंटल रिटार्डेशन, बट कभी कभी डाउन सिंड्रोम का बच्चे एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होता है, वो एक बोलने के लिए तो डाउन सिंड्रोम है, बट फॉर्चुनेटली उसका जो वाइटल एरिया है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ। What the point? This is called as mosaic Down syndrome. So this can happen. So this is typical nature of a chromosomal disorder. So chromosomal disorders are different from hereditary disorders. So Down syndrome में अगर प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, जीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीन तो इनोसेंट है, क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा है। जब प्राइमरी मियोसिस और सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन जब चल रहा है तो उस टाइम में जो है गड़बड़ में एक दूसरे से जाके मिल जाते हैं, कहीं और गलत जंक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। सो डाउन सिंड्रोम इज नॉट ए जीन डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम इज ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। टर्नर सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोम ही नहीं है ना, वो क्रोमोसोम कहीं और खो गया, ठीक है, वो आया नहीं, वहाँ पे सेट ही नहीं हुआ, 46X 0 हो गया, वही है नहीं वहाँ पे, ठीक है। एक गलती कहाँ पे हो रहा है, या तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी माइटोटिक मियोसिस डिवीजन में हो रहा है, या तो अर्ली पार्ट ऑफ द जाइगोट प्रोलिफरेशन में हो रहा है। जाइगोट बनने के बाद कुछ 1-2 दिन तक जो प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे हो रहा है,
क्योंकि जाइगोट जब बनता है तो उसके बाद उसका प्रोलिफरेशन बहुत फास्ट चलता है। जब कोई भी चीज़ आप फास्ट करते हो तो गलती होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो उस टाइम में जो है गलती हो जाता है। सच थिंग्स आर कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। नाउ लुक एट द मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में एक्चुअली हमारे पास 3 या 4 टाइप है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर रिलेटेड टू जीन्स, नॉट टू द क्रोमोसोम। वहां पे क्रोमोसोम सही है, क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रोमोसोम में एब्सोल्युटली फाइन है। ये क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम कंटेन मोर देन 500, 600, 700 जीन्स तक रहता है एक एक क्रोमोसोम में। उतना जीन्स में कोई एक जीन में प्रॉब्लम है, ठीक है। एक क्रोमोसोम, टेक क्रोमोसोम नंबर 14, वो 14 नंबर का क्रोमोसोम में मान लो 500 जीन है टोटल। उस 500 में जो है 450 नंबर में जो एक जीन है वो जीन में थोड़ा प्रॉब्लम है, ओके। सो देयरफॉर प्रॉब्लम इज देयर इन द सिंगल जीन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सिंगल जीन डिसऑर्डर्स। Therefore, it is called as single gene disorder. This is the first type of Mendelian inheritance disorders. ठीक है। और ये जो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स है, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। जीन्स हमारे पास दो टाइप का क्रोमोसोम है, एक तो ऑटोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम है। ऑटोसोम 22 है और इसमें 2 है, ठीक है। तो ये जो सिंगल जीन का जो डिफेक्ट है ये ऑटोसोम में भी हो सकता है या सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकता है। जब वो ऑटोसोम में होगा तो हम बोलेंगे ऑटोसोमल सिंगल जीन डिसऑर्डर्स। जब वो सेक्स क्रोमोसोम में होगा देन वी विल कॉल इट सेक्स सिंगल जीन डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोम सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये जो ऑटोसोम्स में एक सिंगल जीन है, अब बेसिकली क्या है कि जीन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। जीन्स 2 टाइप के, मोटी तरह से आप बोलेंगे तो। जैसे कि लोग कितने तरीके के होते हैं, लोग यूजुअली हम बोल सकते हैं कि 3-4 टाइप के होते हैं। कुछ लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं और काम भी करते हैं। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते। और कुछ लोग हैं बहुत कम बोलते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और कुछ लोग हैं कम बोलते हैं, काम भी नहीं करते। जैसे ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसी जीन्स में एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। सम ऑफ द जीन्स आर डोमिनेंट जीन्स, सम ऑफ द जीन्स आर रिसेसिव जीन्स, ठीक है। ये जो एक क्रोमोसोम में इतना सारे जीन्स है ना, 500 अगर जीन है तो यूजुअली उसमें कुछ जीन्स होते हैं जो डोमिनेंट नेचर के हैं, कुछ जीन्स होते हैं जो रिसेसिव नेचर के हैं। डोमिनेंट नेचर के जीन्स क्या होते हैं कि वो हमेशा वो जैसा बोलता है वैसे ही चलता है, ठीक है। सपोज फादर का साइड से भी आ गया क्रोमोसोम नंबर 14, जाइगोट में बता रहा हूँ मैं, मदर का साइड से भी आ गया क्रोमोसोम नंबर 14, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 14 में 450 वाला जीन नंबर ले लो, वो फादर का साइड में भी है, मदर का साइड में भी है। ये दोनों ऐसे खड़े हैं क्रोमोसोम में। दिस इज कॉल्ड एज वन एलील, एक एलील बोलते हैं। 450 नंबर इधर और 450 नंबर इधर, दोनों जेरॉक्स कॉपी जैसा ऐसा है, ठीक है। अब बोलने के लिए तो दोनों जीन्स एक ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 450 नंबर का जो जीन है यहाँ पे, अगर ये आपका कॉर्निया का प्यूपिल का कलर को डिसाइड करने वाला जीन है, दिस जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्निया का या प्यूपिल का जो भी है कलर है उसको डिसाइड करने वाला, ब्लैक होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए, उसको डिसाइड करने वाला जीन है, ठीक है। और ये मदर का साइड में भी है, फादर का साइड में भी है, ऐसे है ये, ठीक है। अब अगर आप देखना पड़ेगा कि मदर का साइड का जो जीन है वो ब्लू कलर वाला है, ठीक है। और फादर का साइड से जो आए हुए जो ये है, ये कॉर्निया को या प्यूपिल को जो है ब्लैक कलर देने वाला है। अब फादर के साइड से जो आया है ना उसका नेचर है डोमिनेंट, और मदर के साइड से जो आया है उसका नेचर है रिसेसिव। अब किसका चलेगा? फादर का ही चलेगा, क्योंकि वो डोमिनेंट जीन है। सो बच्चे का स्क्लेरा का कलर कैसे होगा? ब्लैक होगा। सो डोमिनेंट जहां पे होता है उसका काम चलता है, रिसेसिव जहां पे होता है चुप बैठता है। ओके, सो दिस इज 2 टाइप्स ऑफ जीन। सो नाउ ऑटोसोमल
और सेक्स क्रोमोसोमल, 2 हो गया सिंगल जीन में। ऑटोसोमल में फिर से 2 है, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन्स हो सकता है कुछ, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन हो सकता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है। ठीक है, इसलिए जो जीन जो डिफेक्टेड है, जो डिफेक्ट है, देखना पड़ेगा कि वो डोमिनेंट है, देखना पड़ेगा वो रिसेसिव है। डोमिनेंट है तो उसका एक इनहेरिटेंस अलग तरीके से होता है, वो हम आगे देखेंगे। और ये है रिसेसिव है तो उसका एक इनहेरिटेंस अलग तरीके से होगी। यहाँ तक क्लियर है? सिंगल जीन डिसऑर्डर्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड रिसेसिव। दिस इज वन। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में एक और चीज है, एक और टाइप, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। एक तो हो गया सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, दूसरा है मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस मतलब क्या है? नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रोमोसोम नंबर 14 को लेंगे हम, उसमें एक जीन है, ठीक है, 450 नंबर में एक जीन है, ठीक है, वो जीन्स तो वैसा सही है, ठीक है, बट दैट जीन इज नाउ वल्नरेबल टू अंडरगो सम चेंज। उसमें जो एमिनो एसिड है, जीन्स में तो ये डीएनए, उसमें एमिनो एसिड ही तो बनता है, तो वो चेंज मतलब कुछ चेंज होने के लिए वल्नरेबल है ज़्यादा, प्रोवाइडेड आपने कुछ ऐसा प्रोवाइड किया तो। फॉर एग्जाम्पल उसमें चेंज हो सकता है, वैसा तो डिजीज नहीं है, ठीक है, वैसा तो ये नहीं है, बट वो चेंज हो सकता है अगर आपका डाइट हैबिट सही नहीं है, तो उसमें एक छोटा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। मदर का डाइट हो सकता है, फादर का डाइट हो सकता है, या स्पर्म जिस तरीके से आया हेल्दी एनवायरनमेंट से उसमें कोई प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा रेडिएशन के लिए एक्सपोज हो गया, ठीक है, या बहुत ज़्यादा कोई इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज हो गया, वो स्ट्रेस फैक्टर में आ गया, ठीक है, ये तो बिकॉज ऑफ सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट जीन इज नाउ लिएबल टू अंडरगो सम चेंज, और उसमें चेंजेस आ सकता है जो मदर में नहीं था, जो फादर में नहीं था, बट इस जनरेशन में वो आ सकता है क्योंकि वो लाइफस्टाइल की वजह से, मतलब एनवायरमेंट की वजह से। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मल्टीफैक्टोरियल, बहुत सारे फैक्टर्स उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, इसकी वजह से उसमें कोई चेंजेस आ सकता है। एक बार उसमें चेंज आ गया तो वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंटिन्यू रहेगा, फादर को मदर को नहीं था, बच्चे को आ गया और बच्चे से नेक्स्ट जनरेशन की जाएगा। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस विच इज कॉल्ड एज मेंडेलियन टाइप्स, मेंडेलियन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तीसरा और लास्ट है वो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में क्या है, जैसा हमें पता है कि ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है ना। इवन ह्यूमन सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ इनहेरिटेंट फैक्टर्स है, माने कुछ जीन जैसा ही है, इवन माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। वो भी जो है, अब ओवम है ना, ओवम में तो सिर्फ न्यूक्लियस थोड़ी है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तो वो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया है, जब ज़ाइगोट बनेगा मदर का माइटोकॉन्ड्रिया का जो भी जीन्स है वो बच्चे को भी जाएगा, और वहाँ से अगर उसका माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स में कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़ है, वो हो सकता है कि बच्चे को भी आ जाए, ठीक है। तो ये जो इनहेरिटेंस है ना, दिस इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। बट इसमें क्या है, मैंने पहले भी बताया था, इसमें क्या है, जो भी आएगा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस मदर का साइड से आएगा, फादर का साइड से नहीं आएगा, क्योंकि स्पर्म का जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक्रोसोम बन जाता है। स्पर्म का मोटिलिटी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो स्पर्म ओवम तक पहुंचते 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 क्या होता है, उसका जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया डिजॉल्व हो जाता है। तो जब वो ओवम तक अंदर चला जाता है तो उस टाइम में सिर्फ उसका न्यूक्लियस रहता है और क्रोमोसोम रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। इसलिए फादर से माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस बच्चे का होने का चांसेस 0 है। अब ये बात अलग है, स्पर्म ने कहीं व्हीकल में बैठ के चला गया माइटोकॉन्ड्रिया को प्रिजर्व करके, दैट्स अ डिफरेंट इशू, ठीक है। अदरवाइज नेचुरल वे में जो होता है, तो वो जब वो चलता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सब मिलके जो है एक एक्रोसोम जैसा बनाता है। वो एक्रोसोम बनता ही इसलिए कि उसको मूवमेंट के लिए, ठीक है। सो बाय द टाइम इट रीचेस होम, ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर finished and there is no risk of transmission of any mitochondrial factors to the zygote. So these 3 types are called as Mendelian's disorder.
ठीक है, क्या होता है फादर की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है? एक्रोसोम बन जाता है, एक्रोसोम बन के वो एक टोपी जैसा बनता है ना, उसमें जो टोपी है वो मूवमेंट के लिए उसको चाहिए, तो वहाँ पे पहुँचते पूरा डिजॉल्व हो जाता है एनर्जी पूरा, और उसके बाद गोज आउट. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज मेंडेलियंस? ये तो 3 टाइप हो गया. आपने पढ़ा होगा 12th में जो मेंडेलियंस है, वो जो पीनेट का जो है उसने जो किया था, ठीक है, तो उसने क्या बताया था कि बहुत सारे 3-4 लॉस बताया था, है ना. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, को डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, तो ये सब लॉस बताया था उसने, है ना. वो पिक्चर्स आप याद रखो. तो ये जितना भी डिसऑर्डर्स है उस लॉ को फॉलो करता है. ये जितना भी डिसऑर्डर्स आपने में बताया, ये वो जो लॉस है उस लॉस को, रूल्स को फॉलो करता है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज मेंडेलियन ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स इनहेरिटेंस. ठीक है, वो लॉस तो मैं अभी नहीं बताऊंगा. नॉन मेंडेलियन ग्रुप में क्या होता है? नॉन मेंडेलियन ग्रुप में यहां पे भी सेम ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव यही है, ठीक है, बट वो मेंडल ने जो बताया ना वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, वो रूल्स के हिसाब से नहीं चलता है. आपका वहाँ पे को डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस वो सब मिलता नहीं है, ठीक है. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को वो क्वालिटीज एक्सचेंज हो रहा है, बट इट इज़ नॉट कमिंग टू, वेरी हैप्पीजार्डली जा रहा है, उस रूल्स के अनुसार नहीं जा रहा है. सो दे आर कॉल्ड एज नॉन मेंडेलियन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक पार्ट ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, एंड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू मेंडेलियन टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, नॉन मेंडेलियन टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, एंड एज वेल एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. Chromosomal disorders, the problem is only there in the chromosomes, whereas Mendelian, non-Mendelian are depends upon the single genes which is present there. So Mendelian disorders are again classified into single gene disorders, multifactorial disorders, and mitochondrial inheritance disorders. Single gene disorder में autosomal dominant recessive, X-linked dominant and recessive. Multifactorial, it depends upon many things. आपका डाइट, आपका हैबिट, आपका लाइफस्टाइल, आपका एनवायरनमेंट, रेडिएशन, ये वो बहुत सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड है. और एक और सेट है नॉन मेंडेलियन. नॉन मेंडेलियन क्या है कि वो भी सिंगल जीन डिसऑर्डर जैसा है, बट ये वो जो रूल्स है मेंडल का उसने जो बताया था वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, बहुत हैप्पीजार्डली चलता है. आप ये नहीं बोल सकते, आप बोल ही नहीं सकते हो कि कैसे आ गया, कौन सा इनहेरिटेंस है, ये डोमिनेंट है, रिसेसिव, बोल ही नहीं सकते, आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे. तो उस टाइप का एक हैप्पीजार्डली आता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स. पहले हमें ये पता होना चाहिए और उसके बाद जो है हम